جب ہم نیت کر لیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہمارے اوپر ممنوع ہو گئی ہیں، جس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، سر نہیں جو ہے مڑا سکتے، یا اسی طرح سے ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں، گری پڑی ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، پیڑ نہیں توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے ممنوع ہیں اور ہمارے لیے روک دی گئی ہیں۔ جو حلال ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ آپ گھڑی پہن سکتے ہیں، چشمہ پہن سکتے ہیں، انگوٹھی پہن سکتے ہیں، آپ بغیر ایسا جوتا چپل جسے ٹخنا نہ ڈھکے آپ اس کو پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چھتری لگا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز و درست ہیں۔ اب آپ کو احرام میں داخل ہونے کے بعد عمرے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ عمرے کا ایک دو فائدہ آپ جان لیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو دونوں عمرے کے بیچ کا جو وقت ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، ٹھیک ہے، ایک یعنی حج اور عمرے کی مطابقت کرتے رہو، یعنی جب بھی موقع ملے آپ اس کو کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا یہ حج اور عمرہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہاری غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، تمہاری غریبی کو بھی مٹاتا ہے۔ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ زنگ آلود لوہا آگ میں بھٹی میں ڈال دیں اور وہ مورچے اور زنگ کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو فائدہ کی بات ہے نا، اس لیے حج عمرہ کرتے رہنا چاہیے، موقع ملے میسر ہو تو ضرور کیا کریں۔ عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ عمرے میں 3 ارکان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ نیت کرنا، طواف کرنا اور سعی کرنا، اور 2 واجب ہیں، ایک احرام پہننا اور دوسرا بال کا کٹانا یا چھلانا، ٹھیک ہے، مکمل سر سے، ادھر ادھر سے نہیں جو کینچی سے کاٹ لیتے، مکمل، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں سے میقات سے جب نکلیں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اس تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے لیے ہی نعمتیں ہیں، لک والملک، تیرا ہی یہ ملک ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس اقرار کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں اقرار تو کرتا ہے کہ شرک نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی شرکیہ کام کرتا ہے۔ شرکیہ کام کے ساتھ ساتھ دیکھا ہم نے بہت سارے بھائیوں کو، کوئی دھاگا پہنے ہیں، کوئی تعویذ پہنے ہیں، کوئی چھلا پہنے ہوئے ہے، اور اس کو روکو ٹوکو تو اس کی سمجھ بات نہیں آتی ہے۔ ادھر کہتا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور ادھر جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بنائے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھروسہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو تلبیہ کا مطلب سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ جائیں گے، جب مکہ پہنچیں گے آپ تو جیسے آپ مسجدوں میں آپ داخل ہوتے ہیں نا تو داہنا پیر داخل کرتے ہیں، ایسے مسجد حرام میں بھی آپ داخل ہوں گے تو داہنا پیر داخل کریں گے، اور جو دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی وہ دعا آپ پڑھیں گے۔ آپ عام مسجدوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے، لیکن جب آپ حرم میں جائیں گے اور احرام کی حالت میں آپ جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، الا یہ کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا ہو، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آپ اس وقت فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تحیۃ المسجد یہ آپ کا دخول اور طواف قدوم ہی سمجھو تحیۃ المسجد، اس لیے آپ وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھیں گے سوائے فرض نماز کے، جب تک کہ آپ عمرہ مکمل نہیں کریں۔ تو اس طرح سے آپ مسجد میں گئے، آپ ڈائریکٹ آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ حجر اسود کے پاس،
हजर अस्वद के पास आप पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद आप देखेंगे हजर अस्वद के करीब नहीं जा सकते, जैसे रश है, भीड़ है, तो आप जो है ग्रीन लाइट जो नजर आ रही है उसकी सिधाई पर आप वहां खड़े करके और उससे पहले आप क्या करेंगे, अपने दाहिने कंधे को खोल देंगे। दाहिना कंधा कहां खोलना है, जब आप हरम में दाखिल हो गए, हजर अस्वद के करीब पहुंच गए, तब आप जैसे खोले हैं तो ये आप बंद कर लें, अभी नहीं खोलना है, इसको बंद करो इसको, ठीक है। दाहिना कंधा कैसे खोलेंगे, या आप चादर कंधे के नीचे से लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ले करके और ऐसे बाएं कंधे पर आप डाल लेंगे, ठीक है। ऐसे आपका दाहिना कंधा खुल गया। इसी हालत में आप जो है 7 चक्कर लगाएंगे। हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 1 चक्कर होता है, ठीक है। जब हजर अस्वद से शुरू करेंगे आप, तो आप कहेंगे हजर अस्वद की तरफ हाथ उठा करके, अगर मुमकिन है तो बोसा लेके शुरू करेंगे, अगर मुमकिन है तो हाथ से छू करके, इशारा करके जो है छू करके आप शुरू करेंगे, नहीं मुमकिन है तो दूर से आप हाथ उठाएंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ उठाएंगे कि एक हाथ? एक हाथ उठाएंगे। वो लोग आपने देखा तो दोनों हाथ ऐसे ऐसे उठाते हैं, ठीक है। कौन हाथ उठाएंगे, दाहिना की बायां? दाहिना हाथ उठाएंगे आप और कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वहां से आप फिर तवाफ शुरू कर देंगे। चलते चलते तवाफ के दौरान जो दुआ आप पढ़ना चाहे पढ़ें, जिस जुबान में चाहे मांगे, कुरान की तिलावत करना चाहे करें। तवाफ के दौरान कोई खुसूसी दुआ नहीं है, जैसे कि बहुत सारी किताबों में लिखा पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, चौथे चक्कर की दुआ। इसका कोई सबूत अल्लाह के रसूल से नहीं मिलता है। आप तवाफ करते करते हजर अस्वद से पहुंचेंगे रुकने यमानी पर। हजर अस्वद से पहले जो कोना है उसको रुकने यमानी कहते हैं। अगर मुमकिन है तो रुकने यमानी पर पहुंच करके उस कोने को आप लम्स करेंगे, छुएंगे, ठीक है। अगर नहीं मुमकिन है, भीड़ है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वहां हाथ नहीं उठाना है, ठीक है। और उस रुकने यमानी से लेकर के हजरे अस्वद तक आपको एक दुआ पढ़नी है जो अल्लाह के रसूल से साबित है। वो दुआ कौन सी है? कौन सी दुआ पढ़ते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ को आपको पढ़ना है। पढ़ते 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 आप फिर हजर अस्वद तक पहुंच गए, 1 चक्कर आपका मुकम्मल हो गया। ऐसे ही आप 7 चक्कर में करेंगे, ऐसे ही 7 चक्कर में आप करेंगे। 7 चक्कर तवाफ करने आपको कितना? 7 चक्कर। हाँ, सब आ चुके हैं, सब आ गए ना पीछे? 7 चक्कर आपके मुकम्मल हो गए। अगर आप जो है भूल गए, अगर आप भूल गए कि वो खाली चक्कर हुआ या 6 चक्कर हुआ, अगर आप भूल गए कि 6 चक्कर हुआ या 5 चक्कर हुआ, इंसान जहन से भूल जाता है कि 5 हुआ कि 4 हुआ कि 2 हुआ कि 3 हुआ, तो हमेशा कम चक्कर वाले को शुमार करें आप। 4-5 में भूल गए तो 4 मान लें, 6-7 भूल गए तो 6 मान लें, ओके ओके, ठीक है। इस तरह से आप 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। तवाफ के दौरान आप तरह से दुआ करें। तवाफ के दौरान आप मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाने से बचें। तो सारे भाई हमारे तवाफ के दौरान आप देखें लाइव चलाते हैं, अम्मा देख रही है, बहन देख रही है, बेटी देख रही है, बीवी देख रही है ना, और उसके साथ साथ पूरे खाने काबा वाले देख रहे होते हैं, जो भी तवाफ कर रहे सब देख रहे होते हैं। आप मोबाइल चलाएंगे, आप इधर से लाइव चल रहा है तो उधर से भी तो देखेंगे ना लोग, और इधर से भी लोग देखेंगे। आप इबादत करने गए हैं, अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह के घर में आप इबादत करें। आप मोबाइल न इस्तेमाल करें इल्ला कि कोई सख्त जरूरत हो। वीडियो फोटोग्राफी से अपने आप को बचाएं। जरूरत है, आगे जरूरत है तो करें, वरना कोई जरूरत नहीं है कि आप इबादत के साथ साथ शैतानी काम को भी अंजाम दें, ठीक है। इसलिए आप अपने आप को
वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से बचा के रखें। 7 चक्कर जब मुकम्मल हो जाए, 7 चक्कर जब पूरा हो जाए, तो 7 चक्कर पूरा होने के बाद आपको क्या करना है? कंधा खोलना है। 7 चक्कर के बाद क्या करना है? हाँ, मुकामे इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करनी है। ठीक है, मुकामे इब्राहिम के पास, अच्छा, तवाफ के हर चक्कर में हजर असद के पास पहुंच करके आपको हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कहना है, और सिर्फ एक हाथ उठाना है। बहुत सारे लोग हाथ उठा करके चूमते भी हाथ को, जब तक हजर असद से टच ना हो जाए, जब तक चूमना नहीं है, जान लेना। ठीक है, तवाफ मुकम्मल होने के बाद मुकाम इब्राहिम के पीछे चले जाएं, जहां जगह मिले वहां 2 रकात नमाज पढ़ लें। 2 रकात ये तवाफ सुन्नत जो है, अगर कोई पढ़ता है तो इब्ने माजा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है उसको। ठीक है, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना मसनून है। ठीक है, पहली रकात में अलहम्दुलिल्लाह पढ़ा हमने, फिर कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में अलहम्दुलिल्लाह पढ़ा हमने, फिर कुल हुवल्लाहु अहद। 2 रकात आपको पढ़नी है। 2 रकात पढ़ने के बाद आप वहां से उठें, जमजम का पानी पीना चाहे पिए ना पिए आपकी मर्जी है। उसके बाद आप जो है कहाँ जाएं? साई करने। मरवा पहाड़ी पे जाएंगे कि सफा पर? कहाँ जाना है? आवाज नहीं निकल रही, यानी आप लोग इतना गड़बड़ कर रहे हैं। सफा जाना है कि सही करना है? कहाँ जाना है? सफा पहाड़ी पर जाना है। कोहे सफा, सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप दाओ बिमा बदा अल्लाह बिही इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह पढ़ते हुए आपको पहाड़ी पर चढ़ जाना है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप खाने काबा की तरफ रुक करके खड़े होकर के दुआ मांगे। 1 मिनट 2 मिनट दुआ मांगे, जो आपको दुआ मांगनी है मांगे। एक दुआ खास भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वाली पूरी दुआ है। आप उसको पढ़ना चाहे पढ़े, अगर नहीं याद है तो कोई भी दुआ आप मांग सकते हैं। जब आप पहाड़ी पर खड़े होकर दुआ मांग चुके, तो फिर आपको पहाड़ी से गुजर करके जाना है मरवा की तरफ। मरवा की तरफ उतरना। आप जब मरवा की तरफ चलेंगे, जैसे थोड़ी दूर चलेंगे ग्रीन लाइट आ जाएगी, ऐसे छत पे लगाया हुआ है। इस ग्रीन लाइट के बीच में मर्द हजरात को हल्की दौड़ लगानी है, बहुत तेज भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, मुनासिब जो है दौड़ लगानी है आप। ठीक है, और उसके बाद यहां से चले, आप यहां पहुंच गए, फिर आप आम चाल चलेंगे। मरवा से सफा से चले, कहां पहुंच गए? मरवा। फिर मरवा से चले, फिर ग्रीन लाइट मिली, फिर दौड़ लगाई आपने, वहां पहुंच गए सफा। कितना चक्कर हुआ? 2 चक्कर है, 2 चक्कर हुआ। कोई एक न माने इसको, बहुत आदमी ऐसा करता है। 2 चक्कर। बहुत सारे लोग सफा से सफा 1 मानते हैं, तो इस तरह से तो 14 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सफा से चलेंगे मरवा 1 चक्कर, मरवा से वापस आएंगे सफा 2 चक्कर, ऐसे ही फिर सफा से मरवा 3, फिर मरवा से सफा 4, फिर सफा मरवा से सफा 5, ऐसे ही 7 चक्कर मरवा पहाड़ी पर जाके मुकम्मल हो जाएगा। आप सफा मरवा की दौरान जब चलेंगे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह, तहमीद, तकबीर, और जो भी दुआएं मांगना चाहे मांगे। ठीक है, आपका चलना खुद एक इबादत है, वहां पर चलना एक इबादत है। आप उस इबादत के दौरान जो चाहे आप पढ़ें। ठीक है, और इस तरह से आपका वजू भी अगर नहीं है तब भी कोई मुश्किल नहीं है, आप सफा मरवा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद मरवा पहाड़ी पर आप गए, वहां आपको बहुत छोटे छोटे लौंडे मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, खड़े हैं कैंची लिए, बाल काट दूं, बाल काट दूं। कटवाना है कि नहीं? नहीं, सुन्नत के खिलाफ है। आपको नाई के पास वहां से निकल के जाना है, और मुकम्मल, या तो मुकम्मल बाल को छिला देना है, या तो मुकम्मल बाल की कटिंग करानी है। ये मशीन लगा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह उन लोगों पर रहम फर जो अपने बाल को हलक करवाते हैं। 3 बार आपने फरमाया,
तो बाल को हलक कराना ये अफजल है, यानी मुकम्मल बाल का निकाल देना, ठीक है। सर के बाल को, और कहाँ के बाल निकल, सर ही के बाल निकलवाएगा नाई के पास, ठीक है। और कटिंग कराना है तो चारों तरफ से कैंची चलना चाहिए, चारों तरफ से मशीन चलनी चाहिए, तो आपका बाल मुकम्मल कटना चाहिए, मुकम्मल छिलना चाहिए, ठीक है। आपका जब आपने बाल कटवा लिया, अब आप हलाल हो गए। आप अपने रूम में जाएं, नहाएं धोएं, एहराम उतार दें और उसके बाद अपना आम लिबास पहन ले, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में खुशबू लगाएं, चाहे इतर लगाएं, चाहे जो मर्जी वो लगाएं, उम्रा आपका हो गया, मुकम्मल हो गया। इस तरह से आप उम्रा कर चुके हैं। और इसके अलावा आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई बात ना समझ पाए, हम मौजूद हैं, शेख मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको कोई सवाल खटके दिमाग में, तो आप बिला झिझक जब भी मौका मिले आप पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। ये रहा उम्रा का मुख्तसर मुकम्मल तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह ताला हम उम्रे को कबूल फरमाए और सुन्नत के मुताबिक उम्रा करने की तौफीक दे। आमीन।